Okay, very good morning, students. Let us start with the revision. Revision of reproduction in plants, syllabus of first term. Before starting the revision, students, let me remind you, today is your test. Today is Wednesday, na? Test of lesson number 16, water ka. ठीक है, a precious resource. Test will be shared at 4 o'clock, right? And students, let me tell you one thing more, as our syllabus is finished, I hope each and everybody of you will send the notebooks. Notebooks of your class checking has been started. कुछ बच्चों ने पहले एक चैप्टर का भेजा हुआ है पीडीएफ, नो प्रॉब्लम, अब दूसरे चैप्टर का भेज दो. अगर किसी ने पहला दूसरा कोई भी नहीं भेजा तो दोनों का एक ही पीडीएफ बना के भेज दो इन द ग्रुप. गॉट इट? एंड प्रैक्टिकल फाइल ऑल्सो, वो एक अलग पीडीएफ बनाओगे फॉर द marks of practical file and send it in the group. Complete your practical files in this week only. Your all the copies will be checked. Afterward, no copy will be checked. Is this clear? Chaliye. Now let us start with our revision. Reproduction in plants. Little bit of this chapter we started on that day. Chapter was reproduction kya hai? It is a process of giving birth to the new young ones or producing of new individuals is reproduction. हमने करा in case of plants there are two modes of reproduction, asexual mode and sexual mode. हमने दोनों के differences भी करे. क्या है asexual के? हल्का हल्का लिख देती हूँ, थोड़ा easy हो जाएगा. asexual and sexual reproduction. Asexual में क्या होता है? One parent is involved. In case of sexual, both parents are involved. ठीक है? In case of asexual, vegetative parts. In case of sexual, reproductive parts are involved in reproduction. Right? Here, no gametes. Gamete formation does not take place in case of asexual reproduction, while in case of sexual reproduction, gametes are formed. Gametes जो होते हैं, ये भी form होते हैं in case of sexual reproduction, right? उसके बाद no production of seeds. जब गेमीट ही नहीं बन रही, रिप्रोडक्शन ही नहीं हो रही, सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव पार्ट से नहीं मिल रहे, तो सीड्स की प्रोडक्शन ही नहीं होगी. इस केस में बिकॉज रिप्रोडक्टिव पार्ट्स आर इन्वॉल्व, तो प्रोडक्शन ऑफ सीड्स टेक प्लेस. इन सीड्स से आगे नए प्लांट्स बनते हैं, राइट? क्योंकि एक ही पेरेंट है, तो यंग वन इज सिमिलर टू द parent, exactly similar, identical to the parent. इस केस में क्या है? Because both the parents are involved and reproductive organs are involved, so what happen? Children or individuals born, they are not identical to the parents, they are not similar to the parents. These are the major differences between the asexual and sexual reproduction. Is this clear? इतना क्लियर है? इसमें कोई डाउट? चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं asexual reproduction से. ठीक है? Shall I erase this? चलिए, coming to asexual reproduction. हमने करा asexual reproduction में reproductive organs involved नहीं होते, और हमने ये भी करा था in case of plants there are basically 3 methods of asexual reproduction. One is fragmentation, then we did spore formation, and then we did vegetative propagation. यही करी हमने, vegetative propagation.
These are the three methods by which asexual reproduction in plants takes place. Let us do fragmentation first of all. Fragmentation as clear from the name. जो parent plant है, the parent plant, it breaks into fragments. Fragment जिसको हम pieces भी बोल सकते हैं, ठीक है। इसमें parent plant जो है वो fragments में टूट जाता है अपने आप, ठीक है। क्या होता है, द पेरेंट प्लांट गेट मैच्योर्ड, ऑन गेटिंग मैच्योरिटी इट ब्रेक्स इनटू टू फ्रेगमेंट्स। दीज टू फ्रेगमेंट्स दे आर द न्यू यंग वन, ठीक है। एक पेरेंट सेल जो है वो किसमें डिवाइड हो रहा है, दो फ्रेगमेंट्स में, दो या दो से ज्यादा में, बट बेसिकली इनटू टू। और ये फिर दो फ्रेगमेंट्स अपना अलग अलग नए इंडिविजुअल के तौर पे काम करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, इसकी बेस्ट एग्जांपल है स्पाइरोगायरा। फ्रेगमेंटेशन की एग्जांपल है स्पाइरोगायरा। स्पाइरोगायरा इज एक्चुअली एल्गी, ये एल्गी है, ठीक है। ये जो स्पाइरोगायरा है, व्हाट इज दैट, इट इज एन एल्गी। तो आपने देखा होगा स्टेगनेंट वाटर में, खड़े पानी में ग्रीन कलर के पैचेस होते हैं। वो ग्रीन कलर के जो एल्गी है, पैचेस हैं, वो क्या है, दे आर स्पाइरोगायरा, ठीक है। तो ये कैसे डिवाइड होते हैं इन केस ऑफ स्पाइरोगायरा, इस तरह का कुछ होता है प्लांट, ठीक है। राइट, ठीक है। अब क्या होना है, इसकी डिवीजन होनी है बीच में से, ये हो गया। नाउ इट विल फॉर्म टू फ्रेगमेंट्स, इट विल फॉर्म टू फ्रेगमेंट्स। एक ये फ्रेगमेंट बनी, एक ये फ्रेगमेंट बनी, इस तरह से, लाइक दिस। ठीक है। नाउ दो बन गए अब फ्रेगमेंट्स। दीज टू विल ग्रो अप एज टू इंडिविजुअल्स। अब ये अलग अलग दो इंडिविजुअल्स बन गए हैं, ठीक है, इस तरह से। इसके अंदर नहीं मैं बना रही हूं, आप बना लोगे, ठीक है। इस तरह से ये दो अलग अलग इंडिविजुअल्स बन गए। ये क्या था, पेरेंट, ये इसकी फ्रेगमेंटेशन हुई, इट ब्रेक्स इनटू टू। अब ये टू न्यू इंडिविजुअल्स आर फॉर्म्ड। अब इनकी आगे फिर ये मैच्योर हो जाएंगे, इनकी आगे फिर से डिवीजन होगी, ठीक है। ये फिर से आगे फ्रेगमेंटेशन करेंगे। क्या हुआ, कोई रिप्रोडक्टिव ऑर्गन नहीं इन्वॉल्व हुआ, ठीक है। एक ही पेरेंट था जिसने अपने आप फ्रेगमेंट्स में आके नए यंग वंस को बर्थ दिया। इट प्रोड्यूसेस न्यू यंग वंस। दिस प्रोसेस इज नोन एज फ्रेगमेंटेशन। किसमें होती है, स्पाइरोगायरा में, ठीक है। किसमें होती है, स्पाइरोगायरा में। स्पाइरोगायरा क्या है, इट इज एन एल्गी। क्या है स्पाइरोगायरा, इट इज एन एल्गी। इज दिस क्लियर? आपने देखा होगा जहां खड़ा पानी होता है, पहले एक दिन थोड़ी सी एल्गी आती है, कुछ ही दिनों में वो सारा भर जाता है। वाई, इतनी जल्दी कैसे भर गया, क्योंकि उसमें क्या हो रही है, फ्रेगमेंटेशन। दिस इज द फास्ट मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन। इज दिस क्लियर? ये क्लियर है? इसमें कोई डाउट हो तो बताओ। इफ देयर इज एनी डाउट, नो। कमिंग टू एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर फॉर्मेशन बच्चे ज्यादातर इस केस में होती है फर्न्स और मॉसेस में, फर्न्स एंड मॉसेस में। एज क्लियर फ्रॉम द नेम, स्पोर्स फॉर्म होते हैं, छोटे छोटे दाने टाइप स्ट्रक्चर्स, ठीक है। ये जो स्पोर्स हैं, दे आर एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव बॉडीज। ये जो स्पोर्स हैं, ये नए प्लांट को बर्थ देते हैं, मींस दे ग्रो इनटू अ न्यू प्लांट, ठीक है। हर स्पोर जो है, स्पोर, दिस इज अ स्पोर, हर स्पोर के बाहर
एक हार्ड प्रोटेक्टिव कवरिंग है, एक आउटर कोट है विच इज वेरी हार्ड। ठीक है, तो ये जो हार्ड प्रोटेक्टिव कोट है ये इसको प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम द हार्ड इन्वायरमेंटल कंडीशन। इज दिस क्लियर? इज दिस क्लियर? इतना क्लियर है? निश्चय अभी स्पोरेंजिया तक हम नहीं पहुंचे। स्पोर क्या है? एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव बॉडीज। इन स्पोर्स के अराउंड एक हार्ड प्रोटेक्टिव कोट है। दिस हार्ड प्रोटेक्टिव कोट गिव्स देम प्रोटेक्शन ड्यूरिंग द अनफेवरेबल क्लाइमेटिक कंडीशन। अब ये स्पोर्स जो है क्या होता है, कैसे प्रोड्यूस होते हैं? ये एक स्ट्रक्चर में प्रोड्यूस होते हैं जिसको कहते हैं स्पोरेंजिया। एक स्पोरेंजिया नाम का स्ट्रक्चर है, उसमें ये प्रोड्यूस होते हैं, स्पोरेंजिया। इज दिस क्लियर? और ये स्पोरेंजिया कहाँ पे होते हैं? ये स्पोरेंजिया कहाँ पे मिलते हैं आपको? समटाइम्स दे आर इन ग्रुप्स। इस तरह ग्रुप्स में ये स्पोरेंजिया होते हैं, इन अ क्लस्टर। इस क्लस्टर को बोलते हैं सोराई। क्या बोलते हैं? सोराई। और ये सोराई कहाँ होती है? इट इज प्रेजेंट अंडर साइड ऑफ द लीफ, लीफ के नीचे वाली तरफ। समझ में आया? मैं दोबारा बोल रही हूं। स्पोर फॉर्मेशन मोस्टली टेक्स प्लेस इन केस ऑफ ferns and mosses, right? This spore, it is the asexual reproductive body. On getting favorable conditions, these spores germinate into new plants. Got it? But जब तक favorable conditions नहीं आती, germination नहीं होती, इनको बचाना है, खराब ना हो जाएंगे। ठीक है? For that, there is a hard protective coat around the spore. This hard protective coat, it protects the spore during unfavorable climatic conditions. जब climatic conditions favorable होती हैं, this coat break and the spore germinates into a new plant. Now, ये जो spore हैं, they are produced in a structure called sporangia. Spores किसमें produce होते हैं? They are produced in a structure called sporangia. Or sporangia, they are sometimes present in groups in a cluster, which is called sorai. These sorai, they are present under the leaf, on the underside of leaf. Is this clear? इतना क्लियर हो गया? दोनों टाइप्स क्लियर हो गई किस तरह से होती है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। थर्ड आ गई वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। आज हमने वेजिटेटिव प्रोपेगेशन शुरू नहीं करनी, उससे पहले आज हमने एक अलग कैटेगरी करनी है जिसको प्लांट्स में आजकल कंसिडर नहीं किया जाता। पहले इसको प्लांट्स में नहीं रखा जाता था, एक अलग फैमिली पढ़ी जाती थी, दैट इज फंजाई। फंजाई, फंजाई, गॉट इट? फंजाई हो जो है, पहले इनको, क्योंकि ये नॉन ग्रीन है, ये हम पढ़ के आए हैं, फंजाई नॉन ग्रीन प्लांट्स में रखा जाता था। इनको नॉन ग्रीन थे तो इनको प्लांट्स माना ही नहीं जाता था। ठीक है? तो बट नाउ दे आर कंसिडर्ड प्लांट्स। हाँ, बट इनका जो मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इट इज डिफरेंट फ्रॉम दैट। दो मेथड दिए हैं आपकी बुक में, दो मेथड है। वन इज बडिंग एंड स्पोर फॉर्मेशन। हमेशा हम फंजाई की स्टडी ही अलग करते हैं क्योंकि इसके कैरेक्टरिस्टिक टोटली प्लांट से डिफरेंट हैं, इसलिए हम फंजाई को साइड बाय साइड पढ़ते हैं बट अलग पढ़ते हैं। ठीक है? फंजाई इज अनदर किंगडम, एक प्लांटी किंगडम है, एक फंजाई किंगडम है। ठीक है? बडिंग और स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर फॉर्मेशन, ये दो मेथड दिए गए हैं आपकी बुक में। बडिंग जो है इट टेक्स प्लेस इन यीस्ट, और स्पोर फॉर्मेशन की एग्जांपल दी गई है ब्रेड मोल्ड में, ब्रेड मोल्ड में। ठीक है? अब यीस्ट कैसे रिप्रोड्यूस करती है? ठीक है? क्या होता है, सपोज दिस इज अ यीस्ट,
क्या होता है यीस्ट में, यीस्ट का जो सेल है इसके अंदर क्योंकि यूनिसेलुलर है, पेरेंट यीस्ट सेल है, इसके अंदर ही दिस इज यीस्ट, इसकी एक साइड पे बड बन जाती है, छोटी सी बड बन जाती है ऑन द साइड ऑफ, ऑन द वन साइड ऑफ यीस्ट सेल। जब बड बनी ये बीच में से रिमूव हो जाएगी इस तरह से, दिस इज द न्यू बड विच इज फॉर्म्ड, न्यू बड। अब इस न्यू बड के दो केसेस हो सकते हैं। एक केस तो ये होगा, ये बड इससे डिटैच हो जाएगी और एक नया इंडिविजुअल बन जाएगा, दिस इज पेरेंट, ठीक है, पेरेंट यीस्ट सेल, ये इससे डिटैच हो गई और एक अलग इंडिविजुअल बन गया। ये तो यही रह गया, ये इससे रिमूव होके अलग इंडिविजुअल बन गया। बट समटाइम्स व्हाट हैपन इज ड्यू टू राइट अवेलेबिलिटी, सफिशिएंट अवेलेबिलिटी ऑफ न्यूट्रिएंट्स, ये जो पेरेंट है इसके साथ बड अटैच है, अटैच होते होते ही नई बर्ड्स की फॉर्मेशन हो जाती है इस न्यू इंडिविजुअल पे। किस तरह से? ये पेरेंट बड है, दिस इज द पेरेंट बड, इसके ऊपर मैंने ये बड बनाई थी, ठीक है, कि ये बड बनी थी। अब इसके होते होते ही व्हाट विल हैपन, अ न्यू बड विल फॉर्म हियर, इस तरह से चेन ऑफ बर्ड्स विल अपीयर। दिस इज अ चेन ऑफ न्यू सेल्स। कितने सारे ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूस हो गए एक ही टाइम पे। अब जब ये डिटैच होंगे तो एक बार में ही कितने सारे आ जाएंगे, सो मेनी ऑर्गेनिजम्स विल बी प्रोड्यूस्ड। क्लियर है? दिस इज बडिंग। मैं दोबारा बताती हूं क्या है बडिंग। एग्जाम्पल इज यीस्ट सेल, ये है यीस्ट सेल। इसमें क्या होता है, उसकी एक साइड पे बड फॉर्मेशन होती है, पेरेंट की बॉडी के एक साइड पे बड फॉर्मेशन होती है। यहां से दो केसेस अराइज होते हैं, एक तो ये बड डिटैच हो गई और एक इंडिविजुअल नया बन गया, या समटाइम देयर इज सफिशिएंट अवेलेबिलिटी ऑफ न्यूट्रिएंट्स, अच्छा खासा फूड पड़ा है उसके पास, अच्छी कंडीशंस हैं, तो इसके साथ रहते रहते ही उस नई बड के साथ और भी बर्ड्स बननी शुरू हो जाती है। मींस जब तक ये डिटैच होंगी, ठीक है, कितने सारे ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूस हो जाएंगे। दिस इज नोन एज बडिंग। क्लियर है? अब तीसरा रह गया हमारा स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर फॉर्मेशन इधर बनाऊं, इधर बना दो, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन भी बेस करती हूँ। स्पोर फॉर्मेशन होती है ब्रेड मोल्ड में। क्या होता है ब्रेड मोल्ड में? फंगस है ना, ये फंजाई की बात कर रहे हैं हम, इसके थ्रेड लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं जिनको बोलते हैं हाइफे। इस तरह से जैसे जड़ें होती है ना, वैसे इनको बोलते हैं हाइफे, ये जो जड़ें होती हैं, ठीक है, इस तरह से थ्रेड लाइक प्रोजेक्शंस। यहां ऊपर इसके जाती है ये एक डंडी जिसको बोलते हैं स्पोरेंजियोफोर। क्या बोलते हैं? स्पोरेंजियोफोर। इस स्पोरेंजियोफोर दो बनाते हैं हम, चलो। इस स्पोरेंजियोफोर के टॉप पे एक इस तरह से स्ट्रक्चर है, गॉट इट? एट द टॉप ऑफ दिस स्पोरेंजियोफोर there is a structure called sporangium. इस sporangium के अंदर है spores. So many spores. These spores are asexual reproductive bodies. ठीक है? क्या होता है जब ये sporangium
बर्स्ट होता है आफ्टर गेटिंग मैच्योर, तो these spores they get dispersed. ये देखो, ये मैंने इसको बर्स्ट ओपन कर दिया और ये स्पोर्स बाहर आ गए. These spores they come out, they are dispersed in air. अगर हम इनकी बात करें लेबलिंग की, तो these are hyphae. This stalk like structure is sporangiophore. Sporangiophore. This is sporangium. ठीक है, and these are spores which are released in air, dispersed in air. This is sporangium burst open. ये sporangium burst कर दिया. जब sporangium burst करा तो उसमें से क्या निकले? Spores. They are released in air. किसमें रिलीज हुए हैं ये? एयर में. Because these spores they are reproductive bodies, so they will give birth to a new individual. एक sporangium में there are hundreds of spores. कितने ही spores होते हैं एक sporangium में, and when they are dispersed, तो कितने सारे के सारे डिस्पर्स हो जाते हैं जब ये स्पोरेंजियम बर्स्ट ओपन होता है. ठीक है, इतना क्लियर है? एनी डाउट अप टू दिस? वेजिटेटिव प्रोपेगेशन मैंने आज नहीं शुरू करनी, अगर इसमें कोई डाउट है अभी पूछ लो. वेजिटेटिव प्रोपेगेशन कल शुरू करेंगे, उसके साथ ही सेक्सुअल रिप्रोडक्शन शुरू हो जाएगी इन केस ऑफ प्लांट्स. इन दिस वीक वी विल बी एबल टू फिनिश दिस. जब तक हमारे पास अभी 5 मिनट्स आर लेफ्ट, अगर कोई डाउट है तो पूछ लो, अदरवाइज ड्रॉ ऑल द डायग्राम्स. मैंने आपको 4 करवाए हैं, फ्रेगमेंटेशन का, स्पोर फॉर्मेशन का, ब्रेड मोल्ड का और यीस्ट का. चारों के चारों ड्रॉ करो. डोंट लीव द क्लास, अभी अटेंडेंस नहीं हुई आपकी. Those who have not done, draw it. Hurry up. Waiting for your questions also. नहीं तो अभी मैंने सुनना शुरू कर देना. हाँ जी आदित्य. हाँ जी प्रेरणा, हो रही हूँ साइड. आदित्य प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ. यस मैम. आदित्य आपकी आवाज नहीं आ रही मुझे. यस मैम. हाँ जी, विल यू प्लीज टेल मी व्हाट डू यू मीन बाय एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन? जोर से बोलो. हाँ जी आदित्य, मैंने नहीं सुनना प्रेरणा आपसे, आदित्य बताएगा. आदित्य वेयर आर यू? अनम्यूट योरसेल्फ. यस मैम. आवाज नहीं आ रही आपकी, जोर से बोलो. यस मैम. हाँ जी सुनाइए. एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होती है? मैम वन पेरेंट, बुक खोलोगे? पार्ट्स, नो गमीट. बोलिए. मैम वन पेरेंट, वेजिट्स पार्ट्स, नो गमीट. बेटा ऐसे थोड़ी लिखोगे अगर पेपर में आएगा. सेंटेंस फॉर्मेशन तो करो. मेक अ सेंटेंस एटलीस्ट. सेंटेंस बनाओ. मैम इन asexual reproduction there is only one parent and veget's parts. Vegetative parts are involved, means reproductive parts are not there. हाँ. Okay. Okay, आगे. Ma'am, in asexual reproduction there are no gametes. No Gamete. gamete formation does not take place क्योंकि sexual reproduction ही नहीं हो रही, तो gamete नहीं होंगे. चलिए आगे. आगे आदित्य अभी खत्म तो नहीं हुई इसकी एक्सप्लेनेशन. न्यू इंडिविजुअल इज आइडेंटिकल टू द पेरेंट. ठीक है, जो न्यू इंडिविजुअल है
it is exactly identical to the parent और बोलिए, no response. Yes, Harjeet. Yes, ma'am. In asexual reproduction, production of new plant from a single parent, gametes are not involved. No seed formation is there. Reproduction to vegetative parts. Offsprings are exactly identical to their parents. There's no there's बोलिए, there is क्या? time taken for reproduction and growth of offspring is less. New offsprings find difficulties to survive in new or changing climate. ये तो बेटा एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस आ गए, ठीक है ना? लेट्स नॉट गो फॉर इट, मैंने सिर्फ मीनिंग पूछा है, ठीक है? हाँ जी, दक्षदीप, इट्स योर टर्न नाउ. Dakshdeep, unmute yourself. No response, Dakshdeep. I think the lecture is getting recorded and your parents will come to know. Now I have a proof. I am calling you in the class. You are not responding. Yes, Kiratpal. Kiratpal. Again, no response. Mishti. Yes, Mishti. चलो, जिस बच्चे को आवाज मारती हूँ वो लेफ्ट कर जाता है. ऋत्विक. Yes, Mishti, you are here. Please explain fragmentation. What do you mean by fragmentation? No response. Yes, Janisha. Yes, ma'am. क्या है fragmentation? Yes, ma'am. जनीशा, क्या हो गया बेटा? Yes, ma'am. Breaking up the body of a plant into two fragments where each fragment grows and matures into a new plant. Example, Spirogyra. और कुछ पूरा एक्सप्लेन करो क्या होता है. Spirogyra, it breaks into two or more fragment. ठीक है? Then each fragment grow into new individual. Got it? This process of reproduction is very fast. So within few days, we get the whole pond covered with this algae. Is this clear? Now, yes, Nishchay, I have seen this. Suhana, will you please explain budding in case of yeast? Yeast produced asexually through budding. In yeast, a bud is formed on the side of its body. The bud grows and gets detached from the parent body and forms a new yeast cell. If sufficient nutrients are available, then the budding in the yeast takes place so fast that the first bud starts forming its own individuals. In this way, all the new buds so formed remain attached to the parent cell, forming a chain of buds. Okay, good. Thank you, Suhana.
So students, time is over now. If there is any doubt, you can ask. Only few seconds are left. Hurry up. You can ask if there is any doubt. Otherwise, class is going to be over. Tomorrow we will start vegetative propagation and sexual reproduction. ठीक है? Is this clear? Any doubt? Hurry up. You can ask if there is any doubt. No? No doubt, students? Please tell your friends to join the class. Okay? Attendance is getting low day by day. Okay, students.